slide. Okay, thank you. A very good afternoon, everyone. So it's your third class for e-commerce, and we discussed in the last two classes that how the e-commerce has taken away all kind of businesses, and now the online business and internet business is emerging at a pace like never before. Now we'll talk that how we can have different models under the e-commerce system, because we can see that there are many companies. Name a company and it has its presence over internet. Okay, so we cannot even name a company that doesn't have its own website, or that doesn't have any kind of online presence. Now every company has gone for the internet and online system, and that is why we need to explore that how we can have different models based upon our own convenience. So today we'll discuss that what is the pure online business, or what is bricks and clicks model, and then we'll discuss what is m-commerce. However, in the last class I discussed upon the m-commerce whenever you are using your mobile phone to do any kind of commerce activity. Usually in e-commerce, we involve the electronic devices. The device can be your computer, your television, your laptop, or your mobile phone. So mobile phone or m-commerce is just a part of e-commerce when you are using various applications to do the commerce over your mobile phone. So we have m-wallets, like we have Paytm, we have Google Pay. They are known as m-wallets because they are there into your mobile phone. Similarly, we have applications for Amazon, for Flipkart, for Myntra. So these applications are embedded in your mobile phone. You can download them from the Play Store, and whenever you use those applications to do any kind of transaction, it becomes m-commerce. Similarly, if you do the same kind of transaction over your laptop, over your computer, then it would become e-commerce. So there is nothing much different in m-commerce and e-commerce. E-commerce where you are using any kind of electronic device, m-commerce when you are using your mobile phone. Now let me go to my PPT, and then we will discuss that how we can have two different models in e-commerce. One is pure online business model, and the other one is bricks and clicks business model. So firstly, we have the pure online business model. As the name suggests, pure online business. That means you do not have any physical presence. Pure online business model. Yeah, I remember कुछ बच्चे कह रहे थे कि I need to explain in Hindi as well. So pure online business model का मतलब है जहाँ पर आप प्योरली ऑनलाइन बेस्ड सर्विसेज देते हैं, यानी आपका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल Amazon. Amazon का क्या आपने कभी कोई स्टोर देखा है कि चलो आपको आज कुछ खरीदना है तो आप Amazon के स्टोर चले जाते हैं? नहीं, because Amazon works upon the pure online business model where they just deal over internet. They just deal online. They do not have any presence offline. In the contrary, यानी अगर इसके अलावा मैं किसी और बिजनेस मॉडल, यानी अगर ब्रिक्स एंड क्लिक्स की बात करूं या फिर और बाकी बिजनेस मॉडल्स की बात करूं, तो जस्ट हैव
a look over Reliance Digital. अब रिलायंस डिजिटल जो है वो भी Amazon की तरह उनका प्रेजेंस है ऑनलाइन, वहां से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन आप रिलायंस डिजिटल के ऑफलाइन स्टोर पर भी जा सकते हैं। जगह जगह रिलायंस डिजिटल ने अपने स्टोर खोले हुए हैं, तो आप उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, जाकर उनके स्टोर से भी खरीद सकते हैं। तो वहां पर वो प्योर ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, बिकॉज दे हैव देयर प्रेजेंस ऑफलाइन एज वेल। अनदर एग्जांपल फॉर प्योर ऑनलाइन बिजनेस इज फेसबुक। अब फेसबुक आप ऑनलाइन चलाते हैं अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल फोन पे, आपके पास एप्लीकेशन है। लेकिन क्या आपने ये देखा है कभी कि फेसबुक का कोई ऑफलाइन स्टोर है जहां पर अलग अलग लोग जाकर बैठकर बात कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज दे प्रोवाइड सोशल नेटवर्किंग बट ओनली ओवर द इंटरनेट। आप सिर्फ इंटरनेट पे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने फेसबुक ने कोई ऐसी जगह नहीं बना रखी जहां पर आप खुद जाकर बैठकर बातें कर सकते हैं। सो दे वर्क अपॉन प्योर ऑनलाइन बिजनेस, जहां पर आपका प्रेजेंस ऑफलाइन ना होकर प्योरली ऑनलाइन है। अब हम दूसरा बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं, ब्रिक्स एंड क्लिक्स मॉडल। The bricks and clicks business model refers to the combination of physical retail location and an e-commerce sales channel. Bricks and clicks या click. So bricks मतलब physical infrastructure, brick यानी ईंटें। तो अगर जहां पर ईंटों से बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ के साथ आप क्लिक भी कर पा रहे हैं, यानी क्लिक माउस का क्लिक, आप ऑनलाइन भी उस पर ऑर्डर कर पा रहे हैं, आप ऑफलाइन भी जा पा रहे हैं, दैट मॉडल इज नोन एज ब्रिक्स एंड क्लिक्स मॉडल, ब्रिक और क्लिक मॉडल, क्लिक एंड मोर्टर मॉडल और क्लिक्स एंड ब्रिक्स मॉडल। तो इसको किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये तीनों एक ही मॉडल है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स भी है, यानी आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एट द सेम टाइम you have your online presence as well. In essence, this business model allows small businesses to take advantage of two unique sales channels by implementing a unified retail strategy. This being said, combining both channels with the bricks and clicks business model gives businesses the opportunity to offer more shopping options to the customers while also increasing their earnings and potential brand reach. Now we have discussed some of the advantages that is being provided by the bricks and clicks model. The first advantage is that you have here two unique sales channels. Suppose you are working online. अब सिर्फ ऑनलाइन है तो जरूरी नहीं कि हर कोई आपके साथ कंफर्टेबल हो। शायद हमारी जनरेशन कंफर्टेबल होगी ऑनलाइन बिजनेसेस के साथ, लेकिन just think about our parents. They are not very comfortable with e-commerce channels and sometimes they have trust issues as well. And that is why what they say, they usually say that I want to purchase it from the offline store so that I can touch and feel the product and you can have a personal contact with the seller. तो आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स अगर हमें कोई चीज खरीदनी है तो वो थोड़े से ऑनलाइन खरीदने में रिलक्टेंट होते हैं। वो कहते हैं कि ऑनलाइन ना खरीद के, जहाँ पे ज्यादा पैसे इन्वॉल्व है तो वो वैसे ही कहते हैं कि यहाँ से ना लेकर हम किसी शॉप पर जाकर खरीदेंगे। अब
अगर सिर्फ आपका बिजनेस ऑनलाइन है तो आपने इस तरीके के कस्टमर तो खो दिए, बिकॉज आपके पेरेंट्स वाली जो जनरेशन है दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली विद ई कॉमर्स चैनल्स, and that is why there is one added advantage of bricks and clicks model. Here you can have an access to both the market segments. Younger segment जो आपके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन खरीद लेगी, और जो ओल्डर सेगमेंट है आपको उनको भी खोने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आपके नॉर्मल ऑफलाइन स्टोर पर जाकर खरीद लेंगे. सो हियर यू हैव टू यूनिक चैनल्स और आपका मार्केट शेयर बढ़ता है, बिकॉज आप दोनों तरीके के लोगों को कैप्चर कर पा रहे हैं. सो even it provides more shopping options to the customers. आज मेरे पास ऑप्शन है, suppose I want to purchase a mobile phone. अब मैंने वो रिलायंस डिजिटल पे देखा है, रिलायंस डिजिटल पे they are providing me some coupons, they are giving me some discounts, लेकिन डिलीवरी वो 3 दिन बाद दे रहे हैं और मुझे आज ही मोबाइल खरीदना है. तो मैं क्या करूंगी, उनके रिलायंस डिजिटल के शोरूम पर जाऊंगी, वो सारे कूपन्स डिस्काउंट मुझे फिर से अवेलेबल कराएंगे और मैं आज ही डिलीवरी ले पाऊंगी या आज ही खरीद पाऊंगी. तो ये एक फायदा है कि सिमिलर कस्टमर को भी ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, साथ ही में जो कस्टमर्स एक चैनल के साथ कंफर्टेबल नहीं होते तो उनके पास दूसरे चैनल के पास जाने का ऑप्शन होता है. Now we have some examples of bricks and clicks businesses. Although I have already given 2 examples, one is of Reliance Digital, another can be there for Croma. Croma का भी अपना शोरूम है और आप ऑनलाइन भी उनसे खरीद सकते हैं. And there are many other business मॉडल्स जो आप कुछ काफ़ी कंपनीज हैं जो ब्रिक्स एंड क्लिक्स को फॉलो करती हैं. जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको नाइकी का बताया था. अब नाइकी का मैंने आपको ऑनलाइन स्टोर फ्रंट दिखाया था खोलकर कि यहाँ से आप कोई भी शूज़ पसंद करके पेमेंट कर सकते हैं एंड दे वुड डिलीवर द शूज़ टू योर हाउस. सिमिलरली यू कैन गो टू देयर शोरूम. उनके जगह जगह शोरूम्स भी हैं. आप नाइकी पे जाइए, जूते परचेज कीजिए और ले आइए. अब उससे क्या फायदा है, कभी कभी क्या होता है कि आप फर्स्ट टाइम वो ब्रांड ट्राई कर रहे हैं. सपोज मैं नाइकी के शूज फर्स्ट टाइम खरीद रही हूँ तो मुझे डाउट रहेगा कि कौन सा साइज मेरे लिए परफेक्ट होगा. तो मैं किसी ऑफलाइन स्टोर पे जाके खरीद लूंगी, वहां पे पहन के देखा और खरीद लिया. लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम खरीदूंगी सेम ब्रांड से, so I'll be more comfortable because I know about their size. So मैं सीधा उनकी वेबसाइट पे जाऊंगी और वहां पे क्लिक करके अपने साइज के शूज ऑर्डर कर दूंगी. सो यहाँ पर ब्रिक्स एंड क्लिक्स का ये भी फायदा है कि आप जब रिपीटेड परचेज करते हैं तो लोग ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन आना पसंद करते हैं. यहाँ पे हमने कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. One is Walmart. Walmart आपने इंडिया में इतना ज़्यादा फेमस नहीं है. Walmart, it's like big bazaar retailer है एक जो low prices में products देता है and it is very famous in US. Walmart also follows the same model, the bricks and clicks business model, where they work online and offline as well. Similarly, the Target is also a retail chain. It is available online and offline. Now I'll be showing you a video. यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो है.
show me your employees and I will show you your business future. Well, that's our truth. 90. Okay. In video we had some of the features जिनको मैं दोबारा यहाँ पे reiterate करना चाहूंगी. So give me a minute. Yes, वीडियो में दिखाया गया कि आप कैसे ब्रिक्स एंड मॉर्टर मॉडल को यूज कर सकते हैं जिससे आप अपनी कस्टमर वैल्यू को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 एग्जाम्पल बताए हैं जहां पर आप कस्टमर्स को ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हैं. वीडियो में कुछ और पॉइंट्स थे जिनको मैं दोबारा डिस्कस करती हूँ. उसमें से एक पॉइंट था कि यू कैन फोकस अपॉन कोर कॉम्पिटेंसीज. नाउ व्हाट आर कोर कॉम्पिटेंसीज? कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि जो आपके लिए बेस्ट है आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. सपोज आप ऑनलाइन बिजनेस सिर्फ इसलिए चला रहे हैं क्योंकि सब ऑनलाइन है और ऑफलाइन में आपको इतना फ़ायदा हो नहीं रहा है, लेकिन आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है यानी जो बेस्ट है आपका वो है ऑफलाइन बिजनेस. तो आप ब्रिक और मॉर्टर मॉडल को चलाकर दोनों में देख सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है और उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं. जैसे ऑफलाइन में अगर यू आर नॉट डूइंग वेल तो आप ऑफलाइन के 2-3 स्टोर खोल सकते हैं जहाँ पे इस तरीके के लोगों को अगर आना है तो वो आ सकते हैं, बाकी सब ऑनलाइन ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एमआई के इतने ज़्यादा शोरूम्स नहीं हैं जैसे किसी और कंपनी के मोबाइल फ़ोन या टेलीविज़न अवेलेबल होते हैं, वैसे एमआई के इतने नहीं हैं. वो क्यों? क्योंकि दे आर बेस्ट इन देयर ऑनलाइन प्रेजेंस, but they realized that there is a market segment which needs them to be offline, जहां पर लोग आकर भी खरीदना चाहते हैं, इसीलिए उसके लिए उन्होंने 2-3 ऑफलाइन स्टोर खोल दिए. तो आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस कर सकते हैं ब्रिक्स एंड मॉर्टर मॉडल के साथ. सेकेंड है एग्जिस्टिंग सप्लायर नेटवर्क, जिसका मतलब है कि सपोज अभी जो आपके सप्लायर्स हैं वो सपोज सिर्फ ऑफलाइन के लिए हैं, उन्हीं को आप एनहांस करके अपने ऑनलाइन बिजनेस में मिला सकते हैं. इसी तरीके से कस्टमर बेस को भी जो पहले आपसे ऑफलाइन ले रहे थे लोग उनके साथ इस तरीके का ट्रस्ट बिल्ड कीजिए ताकि वो बाद में आकर ऑनलाइन भी आपसे ले सकें. जैसे मैंने नाइकी का एग्जाम्पल दिया था, नाइकी के शूज़ मैं अगर फर्स्ट टाइम ऑनलाइन लूँगी तो हो सकता है मुझे ट्रस्ट इश्यूज रहे या मुझे लगे कि इनका साइज ठीक आएगा या नहीं, लेकिन जब मैं एक बार ऑफलाइन उनके कस्टमर बेस में आ जाऊंगी तो मुझे बाद में उनके ऑनलाइन स्टोर से लेने में कोई हिचक नहीं होगी. सो दे कैन यूज द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस एज वेल. दे कैन क्रिएट द ब्रांड इक्विटी एंड ट्रस्ट. कभी कभी आप सिर्फ ऑनलाइन रहकर वो ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर पाते जो आपका ट्रस्ट होना चाहिए या आपके कस्टमर्स को आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, वो आप नहीं बिल्ड नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जिस चीज़ को हमने कभी देखा नहीं, जहाँ पर हम कभी गए नहीं, उनके ऊपर बिलीव करना मुश्किल होता है. इसीलिए कभी कभी उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आपको अपने ऑफलाइन स्टोर खोलने पड़ते हैं. नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. मैम रुचिका मैम, क्या? हाँ जी मैम कंटेंट कहाँ हट गया है, शेयर कर दीजिए. हाँ, मैंने इनकी वीडियो दिखाई थी
उसके बाद मैं दोबारा भी पीपीटी पे जाऊंगी, मैं बस वीडियो के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो जैसा हम वीडियो के बारे में बात कर रहे थे कि वीडियो में एक और चीज बताई गई थी कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग का क्या मतलब होता है कि आपका स्टोर आज ऑनलाइन है, ऑनलाइन से आपको कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि लोग ऑनलाइन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है, जिससे आप ऑफलाइन अपना बिजनेस आगे खोल सकते हैं। यानी आप लर्न कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। या फिर वाइस वर्सा, आज आपका ऑफलाइन स्टोर है, सपोज आपका ऑफलाइन स्टोर है, मैं कुछ खरीदने आती हूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैंने कुछ खरीद लिया बट कुछ चीजें अवेलेबल नहीं थी, मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं ये ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती हूँ, या मैं अभी ये ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी तो आप डिलीवर करवा देंगे। इससे आपको क्या पता चला कि आपके स्टोर की ऑनलाइन वैल्यू भी बढ़ रही है और आपको अपने स्टोर को ऑनलाइन करना जरूरी है। और उस लर्निंग के साथ अब आप अपने आप को एनहांस करेंगे और ब्रिक्स एंड क्लिक्स मॉडल की तरफ जाएंगे। तो ब्रिक्स एंड क्लिक्स मॉडल जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपको दोनों तरीके का एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। So these were some of the characteristics. Now let me go back to my PPT. हम डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल्स। अब हम कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे ब्रिक्स एंड क्लिक्स मॉडल के। फर्स्ट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। One of the goals of this business model is to offer customers flexibility that you would not be able to offer with a single channel. हमने आपको पहले ही बताया है कि फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपको ऑनलाइन नहीं लेना है तो ऑफलाइन जाकर ले लो, ऑफलाइन नहीं लेना है तो ऑनलाइन ले लो। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है जो प्योर ऑनलाइन मॉडल में नहीं होती या प्योर ऑफलाइन मॉडल में नहीं होती। तो ब्रिक्स एंड क्लिक्स मॉडल जो है इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू इट्स कस्टमर्स। They can either go for offline or for the online channel. Next is unified shopping experience. Similarly, another goal of bricks and clicks model is to provide customers with a unified shopping experience, meaning your two channels need to build upon each other in cohesion and offer greater value than you would receive by simply having one or other alone. So it doesn't mean that if someone is purchasing online तो वो ऑनलाइन ही लेगा, कोई ऑफलाइन ले रहा है तो ऑफलाइन ही लेगा। कभी कभी इस मॉडल का हमें क्या फायदा होता है कि मैंने आज ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन और कल जाके स्टोर से पिकअप कर लिया। या फिर आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, जैसे मैकडॉनल्ड्स आपको बर्गर खाना है और आप लेट हो रहे हैं, अब आप जाएंगे ऑर्डर करेंगे, उसके बाद वो बनाएंगे और फिर आप खाएंगे। तो आप क्या करते हैं, घर से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, इतने में हाफ एन आवर में आप पहुंचे, इतने में उन्होंने रेडी कर दिया। So this is also one of the benefits of bricks and clicks model, जिसमें आप चीजों को ऑनलाइन ऑर्डर करके ऑफलाइन डिलीवर करा सकते हैं। नेक्स्ट है improved customer experience. Both of these goals contribute to the larger principle of improved customer experience. Instead of catering to a single customer channel preference, the bricks and clicks model can cater to a wider range of customer desires. With two channels that work together, customers can access the best of both worlds and are more likely to find a shopping scenario. For example, ordering online and picking. This is what I told you कि एक कस्टमर एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होता है। आज मुझे अगर ऑर्डर करना है पिज्ज़ा और वो कहते हैं कि आपको आकर ही करना पड़ेगा, अब मैं आधा घंटा लगा के जाऊंगी, उसके बाद वेट करूंगी, फिर ऑर्डर करूंगी, तो कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस खराब होगा। इसी
खराब एक्सपीरियंस से बचने के लिए they have come up with the bricks and clicks model, जिसमें आप खुद ऑर्डर करके और वहां से ले सकते हैं. सो इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस और यूनिफाइड शॉपिंग एक्सपीरियंस एक ही चीज है. नेक्स्ट, brand building and growth. Finally, of course, the ultimate goal of this strategy is the success of your business. By reaching more customers and providing a better experience, you will be hopefully access increased profits and business growth. To this point, although perhaps less tangible, implementing and bricks and clicks model allows you to increase the brand awareness and reach, especially through the integrated advertising and marketing strategies. Suppose sorry, you have only online presence. अब ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से क्या होगा कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो लोग ऑनलाइन इतने एक्टिव नहीं है, उनको पता ही नहीं चल पाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, हमारे एल्डरली लोग या फिर घर के बच्चे हैं जो वो ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करते या इंटरनेट यूज नहीं करते या सोशल मीडिया यूज नहीं करते, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है चीज. या वाइस वर्सा बात करते हैं, दूसरा सिनेरियो, सपोज कोई चीज सिर्फ ऑफलाइन है. अब ऑफलाइन मैं अगर घर से बाहर नहीं जाती हूँ ज्यादा या ज्यादा सोशलाइज बाहर जाके नहीं करती हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा. सपोज मैं पूरे दिन फोन में लगी रहती हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल, मैं ज्यादातर टाइम उसी पे अपना वेस्ट करती हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि बाहर कोई शॉप खुली है, वहां पर ये चीज मिलती है. तो इन दोनों तरीके के कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए, अपने ब्रांड को बनाने के लिए आपका प्रेजेंस दोनों जगह होना जरूरी है. ऑनलाइन होगा तो मैं जो लोग घर में रहते हैं उनको कैप्चर कर पाऊंगी, ऑफलाइन होगा तो बाहर जो लोग घूम रहे हैं उनको कैप्चर कर पाऊंगी, जो मार्केट आए हैं, घूमने आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं, उनको कैप्चर कर पाऊंगी, जो घर से शॉपिंग कर रहे हैं उनको कर पाऊंगी. सो इसीलिए ब्रिक्स एंड क्लिक्स मॉडल जो है, इट हेल्प्स यू टू बिल्ड योर ब्रांड एंड इट हेल्प्स यू टू ग्रो. नाउ लेट्स डिस्कस सम pros and cons of the bricks and clicks model. So pros are you can reach more customers. मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ से आप ज्यादा लोगों को केटर कर पाते हो, क्योंकि ऑफलाइन वाले भी लोग आपके लिए अवेयर है और ऑनलाइन वाले भी. तो you can reach more customers. In addition to providing in-store experience for the customers, an online channel distributes goods far outside a local community to global customers. So if I have my presence only offline, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था. सपोज कमला नगर में मेरी कोई शॉप है, तो कहाँ तक के लोग आ जाएंगे? कमला नगर के आ जाएंगे, जीटीबी नगर के आ जाएंगे, सिविल लाइंस तक के लोग आ जाएंगे, दिल्ली के लोग आ जाएंगे एट मैक्स. अब कोई चंडीगढ़ रहता है, वो कमला नगर में शॉपिंग करने तो नहीं आएगा, या कोई तमिलनाडु रहता है, वहां से तो नहीं आएगा. तो मेरी जो रीच है वो ऑफलाइन स्टोर होने की वजह से बहुत लिमिटेड है. लेकिन अगर मेरा स्टोर ऑनलाइन भी है तो I can have the global reach because I can deliver to them at their home. तो इसीलिए it can help you to enhance the customer reach. Next, analytics can improve offerings. Using web analytics tools can help physical store refine in-person offerings, while meeting the customers in physical location can provide the real-time feedback. अब दोनों तरीके
ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस होने के क्या क्या फायदे हैं इस पॉइंट में दिए गए हैं। पहली चीज, ऑफलाइन स्टोर में आप इतने अच्छे से ट्रैक नहीं रख पाते कि कितनी पेमेंट हुई, कितने लोग आए, कितने लोग आकर चले गए। इट इज नॉट वेरी इजी टू कीप अ ट्रैक, बट ऑनलाइन वेबसाइट पे सारा एनालिटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो द मोमेंट somebody would click over your website, उसका भी आपके पास डेटा आ जाएगा और उस डेटा को आप यूज करके पता लगा सकते हैं कि कितने लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड थे आपके प्रोडक्ट में और कितनों ने खरीदा। देन अगर बहुत सारे लोग आए लेकिन कुछ लोगों ने खरीदा, तो इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम है आपके प्रोडक्ट के साथ। लोग इंटरेस्टेड तो थे लेकिन उन्होंने खरीदा नहीं। तो ऑनलाइन सिस्टम का ये फायदा है कि वेब एनालिटिक्स टूल्स लगा के आप इजीली ये पता लगा सकते हैं कि कौन इंटरेस्टेड है कौन नहीं, जो फिजिकल स्टोर में अवेलेबल नहीं है। अब फिजिकल स्टोर में लेकिन दूसरे तरीके के फायदे हैं, जैसे कि रियल टाइम फीडबैक मिल जाता है। सपोज मैंने आज आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने छोड़ दी, मैं किसी और वेबसाइट से जाके खरीद लिया। अब आपको रीजन नहीं पता चलेगा कि क्यों मैं चली गई, लेकिन अगर मैं आपके स्टोर में आई, थोड़ा बहुत घूमी, उसके बाद जाने लगी, तो हो सकता है आपका कोई सेल्स पर्सन पूछे कि क्या हुआ मैम, आपको क्यों पसंद नहीं आया, और मैं अपना रीजन उनको रियल टाइम बता पाऊंगी। तो जो रियल टाइम फीडबैक है वो फिजिकल स्टोर से मिल सकता है, ऑनलाइन स्टोर से नहीं मिल सकता। इसीलिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, प्रोवाइड अ बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। ये हम पढ़ चुके हैं कि कैसे कस्टमर बेटर एक्सपीरियंस हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्स ऑफ ब्रिक्स एंड क्लिक्स मॉडल, क्योंकि हर चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी है। ऑपरेटिंग बोथ, फर्स्ट कॉन इज पोटेंशियली कॉस्ट प्रोहिबिटिव। अब कहना तो बहुत इजी है that you should have your brick and click model, but you are the one who is going to spend money। और हम सब जानते हैं कि दोनों तरीके की प्रेजेंस होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में और एक वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में दोनों में पैसा लगता है। यहाँ पे आपको वेबसाइट डिज़ाइन करानी पड़ेगी, कंटेंट डिज़ाइन कराना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर्स बनवाने पड़ेंगे, उसमें पैसा लगेगा। वहाँ पे आपको बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी, लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, डिजाइनिंग करानी पड़ेगी, उसमें पैसा खर्च करना होगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। नेक्स्ट limitation is comes with a learning curve. For digital native or brick and mortar only brands, learning how to leverage a new sales channel can present a challenge. कभी कभी क्या होता है कि जो लर्निंग कर्व होता है आपका, लर्निंग कर्व होता है कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ों को सीख जाते हैं और उसकी वजह से वो एक बार तो ऊपर जाता है, फिर उसके बाद डिक्लाइन होने लगता है। अब वो डिक्लाइन होने की क्या वजह है? क्योंकि और सारे लोग भी उसी तरीके से सोच रहे हैं जिससे आप सोच रहे हैं। तो ब्रिक्स एंड क्लिक्स मॉडल में आपने इतना पैसा लगा दिया, लेकिन बाकी के कस्टमर्स आ गए और बाद में उन्होंने और न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके आपसे कम पैसे में अपना काम कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये लर्निंग कर्व काम करेगा और आपकी लर्निंग जो है वो डाउन होती जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और बाकी लोग आपकी लर्निंग से गेन करते जाएंगे। तो ये एक और नुकसान है। तीसरा नुकसान, इंक्रीज्ड टाइम इन्वेस्टमेंट। Inventory management across two channels, turning online analytics into action and listening the discrepancies between the online and offline experience requires more time to implement and manage. Here you need to devote more time. ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है, ऑनलाइन भी कर लिया ऑफलाइन, इट्स वेरी हैक्टिक। आपको ऑनलाइन बिजनेस भी संभालना, आप ऑफलाइन भी, वहाँ पे अलग प्रोसेस चल रहे हैं, यहाँ के अलग प्रोसेस चल रहे हैं।
वहां पे लोगों को अलग प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ अलग प्रॉब्लम आ रही है. सो यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग एंड दैट इज व्हाई इट इज अ टाइम टेकिंग वेंचर. आप सिर्फ ऑनलाइन शुरू करेंगे आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ ऑफलाइन करेंगे तो भी इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब आप दोनों चीजों में एक साथ जाएंगे it will take a lot of time and efforts, so you have to be ready about that. And lastly, we will discuss the difference between the brick and mortar store and online store. इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं so that it would be visible to you. चलिए अब डिफरेंस पढ़ते हैं हम. First difference is about time. On brick and mortar store, the customer spends on going to the retail store minimum time for delivery of the product. अब ये प्लस और माइनस का क्या मतलब है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है. सो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है ब्रिक्स एंड मोटर स्टोर का कि कस्टमर स्पेंड्स ऑन गोइंग टू द रिटेल स्टोर. तो कहीं ना कहीं कस्टमर को रिटेल स्टोर तक जाने के पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे. ब्रिक एंड मोटर स्टोर में अगर उनको लगता है कि वो वेट कर सकते हैं प्रोडक्ट की डिलीवरी का, तो प्रोडक्ट की डिलीवरी का वेट करेंगे. और उनको लगता है कि उनको जाकर लेना है क्योंकि उनको जल्दी है तो वो जाकर ले सकते हैं. ऑनलाइन स्टोर में क्या है कि जो मिनिमम टाइम पर डिलीवरी है वो लगेगा ही लगेगा. जैसे मैंने आपको बताया था मुझे मोबाइल खरीदना है, मुझे तो आज ही खरीदना है. अब रिलायंस डिजिटल वाले कह रहे हैं कि परसों देंगे, तो मैं क्या करूंगी, जाकर खरीद कर ले आऊंगी. Amazon पे मैं ये नहीं कर सकती, Amazon पे मुझे वेट ही करना पड़ेगा. इसीलिए एक Amazon का नेगेटिव पॉइंट हो गया और रिलायंस डिजिटल का प्लस पॉइंट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, कस्टमर नीड्स टू बी फ्री व्हेन द स्टोर इज ओपन. अब यहाँ पर जाने की तो बात है लेकिन मुझे वेट भी करना पड़ सकता है. सपोज मुझे संडे को शॉप नहीं खुलती, उनका संडे को स्टोर नहीं खुलता या दुकानें बंद रहती हैं, तो उस दिन मैं नहीं खरीद पाऊंगी, तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया. ऑनलाइन स्टोर में कन्वीनियंस टू कस्टमर इन टर्म्स ऑफ होम डिलीवरी, यहाँ पे आपको एक कन्वीनियंस मिलती है कि अपने आप घर पे आ जाएगा. ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर में आपको वीकेंड पे रश मिलता है, सैटरडे संडे बहुत भीड़ मिलती है. लेकिन ऑनलाइन स्टोर में कभी भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, रात के 12 बजे, रात के 2 बजे. सो टाइम लिमिट नहीं है वहाँ पर. सो टाइम को लेकर ये कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं दोनों के. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी. Customer spends on selection and movement of items from store to home. अब स्टोर से घर तक आने के लिए और जो उसकी मूवमेंट होती है वो कस्टमर पे करता है. अब ये किसके लिए फायदा है, जो बेच रहा है उसके लिए फायदा है, इसीलिए प्लस लिखा है यहाँ पर कि डिलीवरी कॉस्ट मेरे लिए कम आ रही है कि कस्टमर अपने आप ही लेकर जा रहा है. लेकिन ऑनलाइन स्टोर में रिटेलर स्पेंड ऑन सॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवरी. लेकिन यहाँ पर जो है, जो बेच रहा है उसी को पैसा खर्च करना है डिलीवरी तक का और उसी की जिम्मेदारी भी है. तो ये एक नेगेटिव पॉइंट. कस्टमर के लिए पॉजिटिव हो गया, रिटेलर के लिए नेगेटिव हो गया. नेक्स्ट, प्लेस. लिमिटेड रीच. मैंने आपको बताया था अगर ऑफलाइन स्टोर है तो एक लिमिटेड रीच होगा, लेकिन अगर ऑनलाइन स्टोर है तो कहीं भी पहुंच सकते हैं, ग्लोबल रीच हो सकता है. गिव मी अ मिनट. Yeah. Next is product mix. Restricted by store size. Now, if you have a shop, तो आपकी एक लिमिट होगी कि सिर्फ इतना ही इन्वेंट्री आपके शॉप में आ सकती है. लेकिन ऑनलाइन स्टोर के लिए कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है.
क्योंकि वहां पर आप डेली बेसिस पे खरीद सकते हैं, इन्वेंट्री रीऑर्डर कर सकते हैं, तो वहां पे वेयर हाउसिंग की जो है कॉस्ट वो कम होती है। अगर आपने शोरूम बना रखा है तो वहां पे ज्यादा लगेगी। आपको ऑनलाइन बेचना है तो आप कहीं भी किसी भी कमरे में डाल दीजिए, तो ये एक फायदा है। इनवेरिएबली ऑप्टिमाइज टू लोकल नीड्स, यहाँ पे आपको लोकल नीड्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा। सपोज आप ऑनलाइन, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वी यूजुअली गो टू द मोर मेगा मार्ट फॉर शॉपिंग। अब हमारा इंडियंस में वी मोस्ट ऑफ अस आर वेजिटेरियंस, इंडियंस में बहुत लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो इस वजह से जो मोर मेगा मार्ट है उन्होंने एक सेक्शन अलग से रखा है नॉन वेजिटेरियंस के लिए, जहाँ पे वो फिश, मीट, चिकन वगैरह बेचते हैं। उसके लिए उनको बहुत पैसा खर्च करके एक अलग से स्टोर बनाना पड़ा है, कीपिंग आर कल्चर एंड लोकल नीड्स इन माइंड। लेकिन अगर यही चीज ऑनलाइन बेचनी होगी तो वो कहीं पे भी कुछ भी रख सकते हैं, बिकॉज वहां पे ऑनलाइन कोई खरीदने नहीं आने वाला है, यानी ऑनलाइन आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन में देखना है, तो उस तरीके की लोकलाइज्ड नीड्स को ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। Here it can stock rare product, able to aggregate suppliers and customers. So online store में आप कोई भी rare product को भी स्टॉक कर सकते हैं और आप अपने सप्लायर्स और कस्टमर्स को एग्रीगेट भी कर सकते हैं। दैट मीन्स आप अपने सप्लायर्स से एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें मंगवा ली, फिर बाद में नहीं मंगवाई। लेकिन अगर आपका जो ऑफलाइन स्टोर है उस पर आपको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि रेगुलरली सप्लाई होती जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस। ब्रिक्स एंड मोर्टर स्टोर में अगर सिर्फ ऑफलाइन स्टोर है तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे बार्गेनिंग होती है। ऑनलाइन में थोड़ी कंपेटिटिव प्राइसिंग होती है, आपको देखना पड़ता है कि आप कोई और आपका कंपेटिटर इससे कम में तो नहीं दे रहा, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो आप जब भी देख सकते हैं, कस्टमर जब भी कंपेयर कर लेता है, इसीलिए आपको कंपेटिटिव प्राइसिंग रखनी पड़ती है। प्रमोशन रेस्ट्रिक्टेड टू एरियाज अराउंड द स्टोर। अब किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ मैं, तो सिर्फ ऑफलाइन स्टोर है तो आसपास के लोगों को ही एडवर्टीजमेंट कर पाऊंगी, लेकिन ऑनलाइन है तो बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल पे एडवर्टीजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि आई कैन रीच टू द ग्लोबल मार्केट। बास्केट साइज ब्रिक्स एंड मोर्टर स्टोर में लार्ज होता है, ऑनलाइन स्टोर में स्मॉल होता है। इसका क्या मतलब है कि वहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक बार में खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि अब एक बार आप शॉपिंग करने निकले तो आप कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सामान आज ही लो, दोबारा ना आना पड़े। लेकिन ऑनलाइन स्टोर में एक ऑर्डर आप आज कर रहे हैं, एक कल कर रहे हैं, एक परसों कर रहे हैं, बिकॉज वो कन्वीनियंट है, इसलिए आप बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स करते रहते हैं। कस्टमर प्रेफरेंस, अ रीज़न टू गेट आउट। कस्टमर क्यों ब्रिक्स एंड मोर्टर स्टोर की तरफ जाएगा? अगर किसी को घूमने का मन कर रहा है तो वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेगा, वो सोचेगा ऑफलाइन निकल जाते हैं, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा, इसीलिए। दूसरा रीजन, नॉट अपीलिंग टू द टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट्स, यानी जो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, सो उन लोगों को ज़्यादा कोई अच्छा नहीं लगता है, या टेक्नोलॉजी के बारे में जानते तो है लेकिन वो इतना अपीलिंग नहीं लगता है उनको, क्योंकि उनके लिए कुछ नया नहीं है। वहीं अगर हम ऑनलाइन स्टोर की बात करें तो अपीलिंग टू दोज हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम आउटडोर्स। अब जो बंदा पूरे दिन ऑफिस से थक के आया है, वो दोबारा शॉपिंग जाने के लिए शायद उसकी हिम्मत ना हो, इसीलिए वो ट्राई करेंगे कि ऑनलाइन स्टोर से ही खरीद लें। तो जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम बाहर खर्च करते हैं अपना, वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। सेकंड, अपीलिंग टू द टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट्स, जो लोग
बहुत टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट होते हैं, यानी जिनको मज़ा आता है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और कैसे वो न्यू एंड न्यू एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है बिटवीन द ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर एंड ऑनलाइन। ब्रिक एंड मॉर्टर है प्योरली ऑफलाइन, तो प्योरली ऑफलाइन और प्योरली ऑनलाइन स्टोर के बीच का डिफरेंस है। अब हमारे पास बचे हैं 10 मिनट, जिसमें हम आपके कुछ क्वेश्चंस लेंगे। Now you can raise your questions for next 10 minutes. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनको रीड करके और उनका आंसर दे देती हूँ। Is Byju's also a pure online business? Yes. Nykaa is a bricks and clicks model. Yes, because Nykaa के products offline भी available है malls में। विष्णु कहते हैं बुक आपको कौन सी चाहिए? पब्लिशर है इनके MKM पब्लिशर्स, और बुक है डॉक्टर सुशीला मदान की, ई कॉमर्स की बुक है, बीकॉम सेमेस्टर 4 की, easily available on Amazon, e-commerce by Dr. Sushila Madan. मेरे कैमरा में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दी थी ताकि आप पीपीटी अच्छे से देख पाए। हिंदी में मैंने आपको समझा दिया है। नोट, ये पीपीटी आज अपलोड हो जाएगी उसी लिंक पर जो लिंक मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था। ग्रुप मेरी तरफ से कोई नहीं बना हुआ है, अगर आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए। सिक्योरिटी लाइक सेबी, इसके लिए हमारी ई गवर्नेंस है, आईटी एक्ट है, वही रेगुलेट करता है ई कॉमर्स को। बाटा यस ब्रिक्स एंड मोर्टर स्टोर है, क्योंकि वो ऑनलाइन भी देते हैं ऑफलाइन भी देते हैं। ज्यादातर आपने काफी सारे सजेशंस दे रखे हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं। सो यस, आजकल ज्यादा से ज्यादा जो भी ब्रांड्स हैं दे ऑल आर फॉलोइंग द ब्रिक्स एंड क्लिक मॉडल, जहाँ पे उनका ऑनलाइन प्रेजेंस भी है और ऑफलाइन प्रेजेंस भी है। शॉपकीपर जो है वो स्टेटस न्यू अराइवल्स का लगाता है, और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं उसको तो ये ब्रिक्स एंड क्लिक्स मॉडल में आएगा। बास्केट साइज का मतलब है कि जब आप एक साथ कितना सामान लेते हैं। ऑफलाइन में हम ज्यादातर ज्यादा सामान ले लेते हैं रादर देन ऑनलाइन, एक बार में। लिंक मैं आपको दोबारा कर देती हूँ शेयर। मैं लिंक दोबारा शेयर कर देती हूँ। अगर मीनवाइल अगर आपके और कुछ क्वेश्चन है, यू कैन रेज इन द चैट बॉक्स। नहीं नहीं अभी नहीं, मैं लिंक भेज रही हूँ बच्चों को। स्टूडेंट्स मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है चैट बॉक्स में, पब्लिश कर दिया है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक
and you'll be redirected to my PPT. Let me upload this PPT as well. Meanwhile, आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास की PPT इस पे मिल जाएगी. अभी मैं ये वाली जो आज की क्लास है ये भी अपलोड कर रही हूँ. आज की PPT भी अपलोड हो गई है. यू कैन हैव एन एक्सेस टू इट. Any other question there in the chat box? Let me scan it again. Yes, Chroma, Vivo, they all are under the brick and click model. लिंक पे एक बार अंजलि, निकिता, विशाल, प्लीज लिंक पे क्लिक करके एक बार देख लीजिए. लर्निंग कर्व का मतलब होता है, महिमा इज आस्किंग अबाउट लर्निंग कर्व. लर्निंग कर्व इज अ कर्व दैट grows over a period of time and then declines. अब क्या होता है कि लर्निंग जो है आप एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आपकी बढ़ती रहती है, उसके बाद एक स्टेबिलिटी आ जाती है. डिक्लाइन तो क्या कह सकते हैं, एक स्टेबिलिटी आ जाती है. तो अब जब आप ब्रिक्स एंड क्लिक्स मॉडल में होते हैं तो आप अपनी लर्निंग्स तो एनहांस करते हैं, लेकिन जब और कंपेटिटर्स मार्केट में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी लर्निंग कर्व का फायदा उठाने लगते हैं अपने बिजनेस के लिए. तो इसीलिए आपका जो बिजनेस है वो डिक्लाइन होने लगता है, क्योंकि बाकी के लोग आपके एक्सपीरियंस का फायदा उठा रहे हैं. सो दिस इज वन डिसएडवांटेज ऑफ ब्रिक्स एंड क्लिक्स मॉडल, क्योंकि आप इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन बाकी के लोग आपका ज्यादा फायदा उठा रहे हैं. कॉस्ट ऑफ डिलीवरी. कॉस्ट ऑफ डिलीवरी का मतलब है, यहाँ पे हमने रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया था कि अगर नॉर्मल शॉप है, सपोज आपको एक टीवी लाना था, अब जाकर आप टीवी लाए लेकिन रास्ते में टूट गया. अब जाकर आप उसको कुछ नहीं कह सकते, पैसे भी आपके हैं, डिलीवरी कॉस्ट भी आपकी है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है नॉर्मल ऑफलाइन में. लेकिन ऑनलाइन में क्या है, जब तक वो घर पर छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक उनकी जिम्मेदारी है. अगर आपने ऑर्डर कर दिया, वो रास्ते में लाते हुए टूट गया तो वो रिटेलर की जिम्मेदारी है या फिर जो डिलीवरी पार्टनर है उसकी जिम्मेदारी है. तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ डिलीवरी वेरी करती है ऑफलाइन में और ऑनलाइन में. समझ आ गया पूजा? Which method? Of course, brick and click मॉडल, जो उसमें आप दोनों चीज करते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी. मैंने लिंक शेयर किया, एक बार जाकर देखो. लिंक पर आ गई होगी आज की पीपीटी. So that's all for today. किसी का और कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से 1 मिनट में पूछ सकते हैं. एक सेकंड मैं ओपन करके देखती हूँ, ओपन क्यों नहीं हो रहा है, तो जाना चाहिए. एक बार करके देखो, क्लिक हो जाना चाहिए ऊपर. यूनिट 1 ही है, यूनिट 1 का ही पार्ट है आई गेस. देख लूंगी एक बार.
चलिए आज के लिए इतना ही। See you in the next class with another topic. Till then, bye bye. Take care. प्रशांत जी। यस मैम। हाँ जी, अब आप बंद कर सकते हैं।